Amen? अब सोचो आप चर्च सर्विस में आके बोले मुझे नहीं चाहिए anointing. Now think about it. You are in the church service and you say, I don't want anointing. तो मैं कहूँगा क्यों आए भाई? I'll ask you, why are you here? Because anointing is a invisible spiritual force designed to break the chains and shackles. क्योंकि अभिषेक वो अदृश्य ताकत है जो सृजी गई दुश्मन के फंदों को, उसके बंधनों को नाश करने के लिए. वैसे ही blessing is also an invisible spiritual force designed so that you will multiply, you will walk in dominion, and you will fulfill your God-given mandate on this earth. ब्लेसिंग भी, आशीष भी वैसे एक अदृश्य ताकत है जो बनाई गई कि आप पृथ्वी पर फलवंत हो, फलो फूलो, प्रभुता में चलो, अपने जीवन में प्रभुता और राज्य करो. Amen. So you have to understand that it's a divine spiritual enablement. आपको समझना है ये अलौकिक ताकत है, अलौकिक क्षमता है परमेश्वर की. Be fruitful and multiply. फलवंत हो, कई गुना बढ़ो. Fill the earth, subdue it, have dominion. पृथ्वी को भर दो, अपने वश में कर लो, प्रभुता करो. Okay, अब ध्यान से सुनो. Hey carefully. जब blessing के अधीन आप आओगे, When you come under the blessing, हाँ, जो चीज आपके ऊपर प्रभुता कर रही थी, ब्लेसिंग आपको सशक्त करेगा कि आप अब उस चीज के ऊपर प्रभुता करने लग जाओगे यीशु के नाम में. when you come under the blessings, the thing that was having dominion over you, now you will start to dominate those things in your life. Okay, clear है ये बात? हाँ, अब मैं आगे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आप आशीष के अधीन आ सकते हो. I'll teach you how you can come under blessing. क्योंकि ये एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है. हाँ भाई मैं तो आशीष के अधीन हूं. तो मैं कहूंगा प्रगटीकरण कहाँ है फिर? This is not a theological statement to say yes, I am under a blessing, and I'll ask you, where is the proof? Okay, जब एक व्यक्ति ब्लेसिंग के अंडर चलता है तो प्रगटीकरण दिखाई देता है उसके जीवन में. When anyone walks under the blessing, there is proof in their life. There is manifestation of the blessing in their life. Okay, so क्या ब्लेसिंग में क्या बोला? Be fruitful, multiply. In the blessing he said, फलवंत हो, कई गुना बढ़ो. कितने लोग यहाँ fruitful होना चाहते हैं और multiply होना चाहते हैं? How many people here want to be fruitful and want to multiply? Okay, now that is not a bad desire. ये एक बुरी चाहत नहीं है. That's God's desire for humanity. ये तो परमेश्वर की चाहत है मनुष्यों के लिए. Come on. Okay, that's your Father's desire. ये तो आपके पिता की चाहत है. Jesus said, when you bear much fruit, the Father is glorified. यीशु ने कहा जब आप बड़े फल फलाते हो तो पिता की महिमा होती है. Amen. जब आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा तो जहां जाओगे लोग आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे. When your life is loaded with fruits, wherever you will go, people will glorify your God. Amen. Hallelujah. It's not a good thing, it's God's desire for you. ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये परमेश्वर की चाहत है आपके लिए. Okay, I'll take it further. It's not even God's desire, it's God's commandment for humanity. मैं एक कदम और आगे ले जाता हूँ. ये परमेश्वर की चाहत नहीं है, ये उसका आदेश है मनुष्य जाति के लिए. मन करे तो fruitful हो जाना. उसने कहा be fruitful and multiply. He didn't say if you feel like then be fruitful. उसने आदेश दिया फलवंत हो, बढ़ो. Amen. आपको उस जगह में पहुंचना है कि आपको अगर मेरे खुदा ने मुझे बोला है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, फ्रूटफुल हूं, तो कौन मुझे रोक सकता है? You have to come to a place where you will say, if my God has commanded me to be fruitful and multiply, then who can stop me from being multiplied? Amen. अपने पड़ोसी को देखो, उनका हाथ मिलाओ और बोलो, you are called to be fruitful and multiply. Take the hand of your neighbor, tell them आप बुलाए गए हो मल्टीप्लाई होने के लिए. बोलो उनको, आप बुलाए गए हो फलवंत होने के लिए. Tell them you are called to be fruitful. Amen. अगर आप मसीह हो तो ये आपकी बुलाहट है कि आप फलवंत हो यीशु के नाम में. If you are a believer, you are called to be fruitful in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Not just be fruitful.
सिर्फ फलवंत होना but नहीं, then you start to walk in dominion. फिर आप प्रभुता में जीने लगते हो. हाँ? कोई एडिक्शन में है, Someone was in addiction. ब्लेसिंग ने उसको सशक्त किया. The blessing empowered him. जो लत उसके ऊपर प्रभुता कर रही थी, अब वो इस बुरी लत के ऊपर प्रभुता करने लग गया. The addiction that was ruling over this person, now this person is ruling over that addiction. Amen. So you have started to walk in dominion अब आप प्रभुता में चलना शुरू कर रहे हो, because the seed of the overcomer is in you. क्योंकि जयवंत होने का जो बीज है वो आपके अंदर है. ब्लेसिंग क्या करती है? What does blessing मल्टीप्लिकेशन do? लेके आती है. It brings multiplication. मैं जल्दी से इसको बताता हूं. ओके, ल्यूक 9:16. यीशु मसीह ने जब 5 वो लिए रोटी, 2 मछली ली, तो बाइबल सेज एंड लुकिंग अप टू हेवन ही ब्लेस्ड द ब्रेड एंड ब्रोक इट. जब उसने ब्लेस किया रोटी और मछली को, तो क्या हुआ? वो मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि ब्लेसिंग का नेचर ही है मल्टीप्लिकेशन लाना. उसने 5 रोटी 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और तोड़ दिया. जब ऐसा किया, धन्यवाद देकर तोड़ा, तो वो कई गुना बढ़ने लग गई. बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ ब्लेसिंग टू ब्रिंग मल्टीप्लिकेशन एंड increase. Amen.